Ladies and gentlemen, my name is Salmeen Ansari, and I welcome you back to Contourcast Podcast for Life Season 2, Episode 1. Thank you so very much for the heartwarming feedback that you've been giving us throughout Season 1. It has not only been encouraging, but it will also help us analyze what we can do better this season. This season is full of lots of surprises. The first guest that I have with me today was my first point of contact when I got together with the Contour Software team and we were putting things into motion for this fantastic Contourcast podcast venture. He was such a true representation of what Contour Software is and also what the representation of Contourcast Podcast for Life is. Genuine, honest, and truly himself. I'm delighted to introduce to you Sohaib Khattak. Assalamu alaikum and welcome to the hot seat at the other side of the seat, Sohaib. Walaikum assalam and thanks for having me. You're very welcome. आपसे तो इतनी बातें हुई हैं, जनरली भी हुई हैं, इस एपिसोड के हवाले से भी हुई हैं. मुझे जो चीज़ आपके बारे में बहुत दिलचस्प लगी वो कोई एक है नहीं, लेकिन शुरुआत करते हैं एक प्रोसेस और एक कनेक्शन बनाने के लिए उस कहानी के एस्पेक्ट से जहाँ एक बेहतरीन ज़िंदगी आप गुजार रहे थे अजमान में. बहुत अच्छा बचपन आपने गुजारा. ज़िंदगी बहुत सारे लोगों को चीज़ें दिखाती है और आपने भी बहुत कुछ देखा at a young age. Let's start from there. Well, if I put it like from the start, family was based off in Middle East, UAE. Ajmain में रिहाइश थी. My father had a transport business. वो चल रहा था. Elementary education वहाँ से मौजूद है. तो वक्त गुजरते गुजरते लाइक बड़े बहन भाई, आई हैव टू बिग सिबलिंग्स, तो कुछ हद तक अगर देखें तो जो बड़े कर रहे थे आई वॉज फॉलोइंग दैट. आई वॉज ट्राइंग टू लाइक बी इन देयर और फॉलो देयर फुट स्टेप्स एटलीस्ट. क्योंकि आप ज़ाहिरी बात है जो बड़े करते हैं आप उनके पीछे पीछे चलने की कोशिश करते हैं. हाँ, आई कुड ईजीली से कि I wasn't the very smarter one of the whole lot, but yeah, I was a mama's boy to be very honest. मैं वही वो वालदा के पीछे चलने वाला, उन्हीं के like पल्लू से जुड़ा हुआ वैसे था. अगर देखा जाए तो I have been mocked by my siblings. बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है. कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा भी है कि बड़े बहन भाई खेलना चाहते हैं एंड आई एम कमिंग इन सो दे आर टाइंग मी टू द बेड, ठीक है ना, बांध के साइड में डाल दिया है. कुछ और अगर उसमें देखा जाए तो आई बिकॉज वहाँ अजमान में आई हैव बीन अ फीलाइन लवर. माय फादर यूज्ड टू हैव मेनी कैट्स. स्ट्रे कैट्स को हम लोग पालते थे. तो आई हैव बीन मैरिड टू मेनी स्ट्रे कैट्स इन दैट केस एज वेल. वेडिंग बाकायदा हुई है, ठीक है जी. तो वो दुल्हन बनी हुई है, मुझे साथ में दूल्हा बनाया गया है. बट या इट वाज लाइक अ वेरी जॉयफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अ जॉयफुल जर्नी एंड yeah, things have been great. Okay. And then there was a big transition. A close-knit family with a lot of love, support and I think guidance from your walda, जो कि आपने जिक्र भी किया था. फिर आप लोग पाकिस्तान आए और यहाँ पे कुछ आपने मिक्स्ड किस्म के हालात देखे और एक बहुत ही कम उम्री में आपको एक जिम्मेदारी अपने ऊपर उठानी पड़ी, जो कि सिर्फ आपने अकेले नहीं उठाई, आपके बहन भाइयों ने भी उठाई. तो वो भी एक ज़रा एस्पेक्ट बताइएगा. ऐसे सेट कि पहले से ही इरादा तो यूं ही था कि जो बड़े कर रहे हैं उनको फॉलो करना है. माय एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर बिकॉज जब वापस आए तो या द ग्रास इज़ नॉट ग्रीनर ऑन एवरी एस्पेक्ट. हर जगह जो सोचा था वैसे नहीं टर्न आउट हुआ. So my elder sister and brother started giving tuitions. So we were running the house with that as well. Our father was trying his best as well. But yeah, generally the pattern is whenever people migrate or come back to their hometown from different countries, they are mostly वो अपना जितना हत्तल वसा कर चुके होते हैं, कोशिशें, efforts वो complete हो चुकी होती हैं. So and things sometimes don't turn out as we wish. तो उसमें कंडीशन यही हुआ कि initial I always wanted to follow my siblings, but the case was I wasn't fond of children. अच्छा. तो मैं चाहता तो था कि पढ़ा सकूं, like I would like to do that. Because that was somehow a good like we were earning our living that way. Because the household was running on that. लेकिन वो एस्पेक्ट मौजूद नहीं था. सो कुछ हद तक आई थिंक सो
गाइडेंस मिली वालदा से भी, थोड़ा सा पेशेंस वहाँ से आया। बड़े भाई को अगर कहूँ तो हाँ जी, उन्होंने तजलील भी की है, मोहब्बत भी दी है, ठीक है जी। आई एम इंडेटेड टू मैनी पीपल, ठीक है जी, और काफ़ी सारे लोगों का कर्ज मौजूद है मुझ पर, तो उनको शायद चुकता नहीं कर सकता मैं, लेकिन यस उस पीरियड में यही हुआ कि there was one instance when my elder brother asked me to go ahead and start at least start with something. And उन्हीं की एक student थी, he had to go out for some days, so I took that role. I was guiding, and then that started that okay, शायद वो सिर्फ एक realization का point था कि I wasn't at loss completely. There is some hope at the end, and it was just a basic small push, I think so, which led me, and then Kariban, I think so, for the next 7 years, I started teaching. I have taught in schools. I have taught in being a tuition for O and A levels. Have taught of many like students from many different high-named schools as well. And so it was pretty much 7 years jab ye pura chala, and yeah, very fond of that period, because from nothing I came to communicating with people. At one point I wasn't fond of even talking to people, and then I was earning just by teaching and talking to people. So yeah, it was a great journey. I'm so glad that you're so candid and there's no layers to this story. जब इंसान बिल्कुल बेसाख्ता होके और एक एक ब्रेव हार्ट के साथ कहानी सुनाता है, बहुत सारे लोग उससे रेजोनेट कर पाते हैं. और मुझे बहुत ही प्यारी बात लगी आपकी कि ना नीदर वर यू अफ्रेड टू कन्फेस कि येस आई वाज अ मामाज बॉय, बिकॉज आई थिंक लोगों ने शायद सोसाइटी में उसको एक डिफरेंट ही रंग दे दिया है इस टाइटल को. दूसरा मैं विजुलाइज करने लगी सोहेब, जो आपने कहा ना कि भाई बहन बांध भी देते थे. ओ डियर गॉड, मतलब मस्ट हैव बीन हिलेरियस टू लुक एट नाउ, बट उस वक्त शायद आप कहते थे ये हो क्या रहा है, ये बड़े भाई बहन वाकई मेरे हैं. अच्छा, आगे चलते हैं इसके. एक आपने चीज़ जिक्र ये भी की कि आप जब बात करते हैं और आप बहुत मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आपको दिलचस्पी भी बहुत सारी चीज़ों से, लर्निंग से, रीडिंग से, हिस्ट्री से, साइंस से, आप you're the kind of person who can contribute to any conversation. लेकिन फॉर्मल तालीम जिसको कहते हैं, जाके स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज लाइफ एट्सेट्रा, वो आपका जो कन्वेंशनल पाथ है वो भी नहीं था. अच्छा, ओके. सो जब आपका कन्वेंशनल पाथ नहीं था एंड यू लर्नड ऑन एंड ऑफलाइन बोथ, बट यू वर स्टिल अ स्टेप अहेड कि आप ओ लेवल्स, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे. Was it instinct? Was it survival instinct? Was it a guidance that you got from your elder brother that you were able to... I don't even want to explain or ask too much. How did you manage that? Well, I think so it would be taken as a combination of many things. Okay. आप उसे जिस तरह से कहा जाए कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी है कुछ हद तक. द बेस वाज सेट बिकॉज द एलिमेंट्री एजुकेशन केम फ्रॉम मिडल ईस्ट. तो जो हमारा करिकुलम डिफरेंस है वो अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो यहाँ के हमारे पास जो ए लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, आई वेंट थ्रू दैट in being in UAE. तो कुछ हद तक बेसिक्स थी. So it wasn't new to us. Like generally अगर मैं एग्जाम्पल भी कहूँ तो हमारे पास करिकुलम को देखा जाए, अगर हम वो मैथमेटिक्स के वो तमाम हिस्से पढ़ते हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते इन रियल लाइफ. लाइक our people or our students don't exactly know why are they reading or why are they learning that aspect. Right. In comparison to what O and A level does, उन्हें इल्म है कि अगर कुछ पोर्शन पढ़ा जा रहा है तो उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या है. लाइक बिकॉज आपने सवाल ज़रूर किया कि हम CS से ताल्लुक़ रखते हैं. CS हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज वेल. तो जो आज या हमारे पास बेसिक करिकुलम में पढ़ाया जाता है उसका ताल्लुक़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से है. बट द स्टूडेंट डजंट नो दैट व्हाई इज़ ही, लाइक इफ़ आई मेनली से हम मैट्रिकुलेशन में मैट्रिसेस पढ़ते हैं, मैट्रिक्सेस पढ़ते हैं, एंड देन सेट्स पढ़ते हैं. But that's actually database knowledge, which we don't come to know that where is that going to be implemented later on. Connection nahi sikhate hain. Yes, true. So there's no connection at all.
Coming back to the question कि yes, most of the conventional जो मेरे education थी, वो चूँकि वक्त के साथ साथ तब्दील हुई, because ये कह सकते हैं कि जहाँ siblings मौजूद थे, they were also walking their own path. They were trying to create their own like where to go and how to achieve something. So I being the youngest, I was looking at them. तो condition यही हुई कि वो जहाँ भी गए, like computer engineering was one thing, then at that point अगर मैं early 2000s की बात करूँ तो बड़े भाई जो थे वो banking sector को explore कर रहे थे. अब चूंकि हमारे पास बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, वी आर एट लॉस एट दैट पॉइंट एज वेल. बट येस, देयर वर पीपल हु फाउंड कि अच्छा जी, देयर आर पीपल एस्पिरेंट टू जॉइन. सो येस, वी हैड आवर सेंट्स एज वेल जिन्होंने हमें हेल्प आउट किया. So my brother joined the banking industry. I also, like at one point, I went into the Islamic banking part. I cleared like a 3-month diploma of it. But yes, I don't think so that was my passion. तो उसी दौरानिए में अगर हम कहें 2000 के करीब कब पोर्शन था पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर का बूम हुआ. टेलकोस केम इन, दे ब्रॉट थिंग्स अप. Call centers industry. Meanwhile, I was being a tutor. रातों में या संडेज के अखबार I used to pull up and see कि there's a lot of advertisements for people who are being asked for call center agents. ठीक है जी, for search जो तमाम areas थे उन पे jobs मौजूद थी market में. Started to contact those guys just to understand कि what exactly they are looking for in a resource. बड़े mixed kind of experiences रहे. Visited some places, they got us in. Training की एक रात गुजारते हैं, like cause it was all supporting US time zones. तो बातचीत होती है, then come to understand कि अच्छा जी कुछ काम जो हो रहे हैं वो शायद religion limit कर रहा है उसको, तो वो छोड़ा. फिर उसी तरीके से my first very good experience was when I came to in the day it used to be a gaming zone. In the night the resources जो से चला रहे थे, they just what they had to do, they had to switch. सिर्फ उसको VoIP पे switch करते थे, connections मौजूद थे, better headsets, and they used to convert it into a call center. तो very young people used to like call the US people, they were verifying leads, they're verifying information. So that seemed legit and that worked out. So got some experience of that part. So converting like cold leads to mild and mild to hot leads. Then the experience started in that yes, how things are. इसका कुछ example मैं आपसे share करूँगा. चूँकि जिस तरह से हम पाकिस्तान में अगर आप कराची की भी बात करें तो उर्दू के बोल चाल के एरिया वाइज तब्दीली है. देयर इज अ डिफरेंस इन डायलेक्ट. ठीक है जी. तो आप अगर सेंट्रल में हैं तो आप थोड़ा सा सलीस उर्दू, साफ उर्दू एक्सपेक्ट करते हैं. थोड़ा सा साउथ चले जाएं तो स्लैंग हो जाएगा. द सेम थिंग इज हैपनिंग इन एवरी कंट्री. तो इवन दो अगर आप यूएस की बात करते हैं तो यूएस में भी अगर आप किसी न्यूयॉर्कर से बात कर रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी बिजनेस इंग्लिश. सिमिलरली सेंट्रल में आ जाएं, टेक्सन से बात करेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी मोर मेटाफोर्स. He's going to be bringing in Super Bowl. He's going to be bringing in, there could be a rodeo match happening as well. So that cultural understanding had to be thought of as well. Because it wasn't like a robot on the other side. It had to be a person who understands the culture. So that initial phase actually got myself to understand how to talk to Northern Americans. So like I will give you an example as well. The first time I got a lead which was from Massachusetts. Massachusetts itself, it was a new word for me. Wasn't able to pronounce that. Then we came to understand, okay, there are very different pronunciations. So let's suppose of a name, it's generally put in on the Spanish side, on the southern side, you will see people having names Jesus. It is read Jesus, but it ain't Jesus. It is Jesus. So like whenever a person calls in, can I talk to Jesus? So the other side knew that, okay, this guy is not from US or not from Mexico. So many experiences such happened, and we
like it was a very learning kind of a journey. अब आपकी एज पीपल वुड हैव गेज्ड बाय नो आपकी स्टोरी टेलिंग जो है वो काफ़ी आला है. इट मस्ट हैव गिवन यू एन एज इन योर वर्क ऑल्सो एंड इट्स वेरी हार्ड टू फैदम कि एक ऐसा वक्त था जब आपको लोगों से बात करना ही पसंद नहीं था और आप भाग जाते थे. सो कूडोज टू यू फॉर ग्रोइंग एंड कमिंग सच अ लॉन्ग वे. जब आप कॉन्टूर आए तो आपकी जो कहानी बताई जाती है समथिंग टू डू विद दरवाजे के साथ चपक के बैठ के इंटरनेट कैच करना. What is this Majra? Well, that was like a very interesting time. When I joined like Contour. Right. So था तो यही कि I had my experience with the Northern American market. काफ़ी 15 साल से करीब ऊपर गुजार चुका था. Right. जो कॉन्टोर ज्वाइन करना जो था वो इस वजह से था कि एक तो पैराडाइम शिफ्ट था माई सेल्फ बिकॉज फ्रॉम US आई वॉज ज्वाइनिंग अ कंपनी हु इज सपोर्टिंग द ऑस्ट्रेलियन एरिया. तो मेरी ज़िंदगी का लाइक एक इंसान जो सूरज नहीं देख पाता था वो सूरज में ही काम कर रहा है. सुबह सुबह फजर के बाद जाता है ऑफिस, अर्ली उसका ऑफ होता है एंड सोशल लाइफ भी वापस आई. वर्क लाइफ बैलेंस केम बैक इन. जहाँ तक आपने जब सवाल किया जो दरवाजे से लगने की बात जो है, तो कुछ ऐसे वक्त आए थे उस टाइम पे कॉन्टोर उतना जितना आज इस्टेब्लिश्ड है माशाल्लाह से वैसे नहीं था. सो कुछ ऐसे दिन थे जब मैं पहुँचा सुबह 6:30 बजे और देखा कि दरवाज़ा बंद है. अब चूंकि मैंने तो काम स्टार्ट करना है और देयर इज अ स्पेसिफिक शिफ्ट जिसको फॉलो करना है. सो द ओनली थिंग विच आई कुड हैव डन वाज कि मैं एडमिन को रीच आउट करूं और कुछ हद तक कोशिश करूं कि जितना काम स्टार्ट कर सकता हूं या निकाल सकता हूं. तो उन तमाम दिनों में यस ये हुआ कि लैपटॉप खोला और दरवाजे से जितना चिपक के काम कर सकते थे सिर्फ के वाईफाई मिल पाए और कॉल या ईमेल्स उतर पाए आराम से, वो किया. उसका बस ये ज़रूर होता था कि एक इमेज लेके HR को और एडमिन को सेंड करते थे कि ये आज गुजरी है इस नाचीज़ पर, अगर ख्याल कर सकें और देख पाएँ तो बड़ी नवाजिश होगी. Oh my goodness. And what an amazing story to take forward also, because you know it's a good reminder कि शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी भी इस इदारे के साथ और इस इदारे की भी. True. कि जहाँ now it's one of the most sought after companies in the region, not just in Pakistan, building and the setup and you know the expansion. A person like me, an outsider, would never be able to imagine कि ये वक्त भी देखा है. अच्छा, CS का आपका जो एक रुझान तो था एंड देन करियर आपने डेवलप किया, कॉन्टूर में आए तो एक डिफरेंट किस्म की बॉल गेम, नॉट जस्ट रीजनली. एंड यू शेयर्ड सम वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स ऑन द मैरिज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड CS in a very progressive way over here. I'd like you to shed some light on that. Well, I would associate it with a certain time period of my experience. Like, because पहला जो 7 साल हैं वो करीबन सेल्स करते हुए mostly project coordination करते हुए गुजरे. Right. When I moved to software support or technical support, it was a complete new game. बिल्कुल एक अलग दुनिया के आज या आप किसी को reach out कुछ सेल करने के लिए नहीं कर रहे. अब खेल हो गया था आउटबाउंड से इनबाउंड. नाउ पीपल फ्रॉम द अदर साइड वर रीचिंग आउट टू यू कि मेरा मसला हल कर दो. ठीक है जी. सो द पैटर्न वाज वेरी डिफरेंट नाउ. ठीक है, वहाँ से बेहतर यही होता था. पीपल रीच्ड आउट ऑन सॉफ्टवेयर, हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ये मसला है. नाउ फिर ट्रबल शूट करना उसको कि प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से कोई चेंज आया. लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं, एवरी सिस्टम हैज़ पेरिफेरल्स विद इट. अब एक प्रिंटर था जो कल रात तक चल रहा था, आज शिफ्ट कहीं शुरू होती है, आज वो प्रिंटर सुबह एग्जीक्यूट नहीं करता. अब उस प्रिंटर के साथ एक्चुअली हुआ क्या, उसकी ट्रबल शूटिंग की पूरे स्टेप्स को कंप्लीट करना, टू गाइड पीपल हु आर ऑन साइट के वो किस तरीके से उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, एंड गेटिंग टू दैट फैक्टर. एंड at end the eventual result was to have a case resolved, have the customer happy. And that was the overall the complete new paradigm ka change जिसने समझाया भी बताया भी and a whole new world came to me.
बिल्कुल ठीक है. And a whole new world which you've been very happy with, it seems, because you've been here for quite a while and been a part of so many big achievements that Contour has been able to put very proudly on its portfolio. So उसी टेंजेंट पे पूछती हूँ, मुझे बताइए कि 2-3 ऐसी चीज़ें जो पिछले 2-3 साल में, 2-3 साल इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कोविड एंड पोस्ट कोविड बहुत सारे चैलेंजेस पोज हुए, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी अचीवमेंट्स इदारे ने की. थिंग्स दैट यू वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ पार्ट ऑफ. I'd like you to mention a couple. वेल एक चीज़ अगर देखी जाए कि बिकॉज मेरी ज्वाइनिंग 2015 में हुई, दैट वाज ऑन अ बेसिक सपोर्ट, बीइंग अ सपोर्ट रिसोर्स. पहला साल गुजरता है एज अ सपोर्ट रिसोर्स. दूसरा साल जब आपके पास आता है तो हमारे कुछ बिजनेस एनालिसिस के लोग कम हो जाते हैं. तो हैड माई हैंडल्ड अप हाई कि ठीक है जी, विल पार्टिसिपेट, अगर नहीं आता तो सिखा दीजिए, समझ लेंगे, काम कर देंगे. दूसरा साल बिजनेस एनालिसिस को भी देख के गुजरा, फिर कुछ क्यूए की रिसोर्सेज गए तो क्यूए में भी हिस्सा लिया. एंड देन इन द 4th ईयर विद दैट रिस्पेक्टिव हमारा डिवीजन, हमारे डेवऑप्स के कुछ रिसोर्सेज गए. बाय दैट टाइम 3 साल गुजर चुके थे. प्रोडक्ट का इन एंड आउट काफ़ी हद तक समझ में आ चुका था. बिकॉज learning a legacy product, it's the time and how you master the product. ठीक है जी. 4 साल के पीरियड के ऊपर आई वॉज ऑलरेडी टेकन एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. कोई भी नया रिसोर्स आता, हैड टू सिट विद मी टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट. तो चौथे साल में आई वॉज वर्किंग एज एन इंटरम डेवऑप्स रिसोर्स एज वेल, अपग्रेडिंग, पैचिंग, ऑफ आवर्स में तमाम प्रोडक्ट को अपडेट करना. दैट वाज नाउ कम्प्लीटली अ पार्ट ऑफ माई जॉब डिस्क्रिप्शन. सो 4 साल विद दैट डिवीजन 4 अलग अलग एरियाज में साइमल्टेनियसली कायम किया. मैंने छोड़ा नहीं. आई केप्ट ऑन एडिंग थिंग्स टू माई अंडरस्टैंडिंग. कोविड के आसपास ही, कोविड का स्टार्ट था जब कॉन्टोर गेव मी द अपॉर्चुनिटी, दे पुट एन अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ मी कि व्हाई नॉट वर्क एंड मैनेज अ होल पोर्टफोलियो विद अस. दैट वाज समथिंग वेरी न्यू, बिकॉज शायद वो कभी सोच में नहीं था. एंड दिस अपॉर्चुनिटी केम अप, सो वेरी ग्लैड. एंड I think so somebody is looking at me from the skies as well, somebody supporting me. Things kept on happening in my favor. And started with that part. 2020 से उस time जब I joined the support portfolio, the customer support client care वाला side, करीबन 30 या 32 resources के साथ start किया. उसी कोविड के पीरियड के अंदर वी quadrupled दैट नंबर. हम करीबन 92-93 रिसोर्सेज तक हमने उस पोर्टफोलियो को ग्रो किया. देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट, जो मेंटरशिप मिली, बिकॉज इट वाज न्यू टू मी. बट येस, सिखाने वाले बहुत अच्छे रहे. बहुत से लोगों ने बताया, प्रोसेसेस समझाए, किस तरीके से बिजनेस को डेवलप भी करना है और फिर उसे उसकी रिटेंशन भी. बिकॉज in the way how Contour works, both sides are customers. Employees भी customers और जो divisions हैं वो भी customers. So शायद कोई बाहर से देखने वाला इस चीज़ को गेज ना कर पाए जब आप एक इस like it's pretty much the other side of the table. Right. For me the sides of the table changed. ठीक है जी. कहाँ एक employee था and then I took as the portfolio manager या उस पूरे service line को lead करना. So that was the case. And COVID period was very, आपने बिल्कुल सही कहा, काफ़ी मुश्किलात भी रहीं. Because moving from office infrastructure to home, पहले तो infrastructure जो काफ़ी हद तक हमारा यहाँ questionable हो जाता है. अगर हम यही सवाल हमारे ऑन शोर के मैनेजर से पूछें, सो दे वुड बी वेरी काम एंड ईजी के अच्छा घर से काम करना है, व्हाई नॉट, गो अहेड. अब उन्हें क्या पता कि मैं रात में तो सोया सही था, सुबह उठूं तो पता लगा फाइबर ऑप्टिक की तार किसी ट्रैक्टर ने खोद के निकाल दी है एंड आई हैव टू रन टू द ऑफिस. एंड दैट्स प्रीटी मच द सेम थिंग जो कि हम अपने रिसोर्सेज को बताते हैं कि यू हैव टू बी ऑन योर टोज, रेडी ऑल द टाइम. That's how you handle things, or either you learn how to handle things. आपको वो प्रेशर लेना, समझना, अपना खुद मैनेज करना, क्योंकि मैनेजिंग अ टीम इज समथिंग डिफरेंट. द फर्स्ट स्टेप इज मैनेजिंग योरसेल्फ. बिल्कुल. तो अगर आप वो करते हैं फिर आप नेक्स्ट स्टेप लेते हैं और अपने आप को किसी सक्सेस पाथ पे पाते हैं. बिल्कुल. अच्छा, क्रिएटिव स्ट्रीक मुझे लगता है कि इंसान में होती है, ठीक है, पहले से. कुछ लोग उसको
चूज़ करते हैं एज अ करियर पाथ, कुछ लोग नहीं एज अ करियर पाथ चूज़ करते हैं. आपने तो वो एक बीच का ही रास्ता निकाला है. आपने कहा अच्छा करूँगा CS, उसमें एक्सेल करूँगा, लेकिन मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की और चीज़ों भी करूँगा. एंड आपको मिल गई फिर ऐसी कंपनी जो कि इस चीज़ को बहुत वेलकम करती है. तो कभी मार्केटिंग, कभी डेवलपमेंट, कभी कोई और क्रिएटिव जोन में आप इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और इस हद तक आप उसको शिद्दत से चाहते हैं कि वो हो जाए कि फिर अब मैनेजमेंट आपको कहती है यार आप ही लीड कर ले. तो where has this come from and why do you feel after every few months maybe that you want to do something in another creative direction when you're not pursuing it as a career? एक पुरानी कहावत है पश्तो में, उसे कहते हैं, शायद रहमान बाबा का शेर भी है कि जड़गिया बख्त ख्वाड़ा. बख्त ख्वाड़ा मीन्स दैट के किस्मत मांगिए. अच्छा, ठीक है ना. द ओनली थिंग विच अ पर्सन कैन आस्क फॉर इज लक, या एक किस्मत का अच्छा तरीक़ाकार जो ऊपर वाला आपको अता कर सके. ठीक है. तो आई कैन से कि हाँ जी, इट इज़ अ ब्लेसिंग टू हैव गुड बॉसेस. यू कांट चूज योर बॉसेस समटाइम्स. व्हेनेवर अ पर्सन लीव्स अ कंपनी इन वन वे ही इज लीविंग अ बैड बॉस समहाउ. ठीक है जी. तो अगर हाँ जी कि मेरा मेन एरिया कस्टमर सपोर्ट क्लाइंट केयर रहा, आई हैव बिन गिविंग आइडियाज़. कंडीशन इज़ के मैं कहता रहता और कोई ना सुनता, तो एट वन पॉइंट मैंने खामोश हो जाना था. बट when I kept on sharing and the other side reciprocated, ठीक है जी, वो एक मौजूद था. they were answering. अगर नहीं कर सकते थे तब बिठा के समझाया भी कि देखो ये अभी नहीं कर सकते, जब करेंगे तो बता देंगे. ठीक है. तो that's the case कि there was always a response. एंड या दैट्स प्रीटी मच अ ब्लेसिंग. एक बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि इस तरह की कंपनी मिली जहाँ लोग सुनते हैं, समझाते हैं, मेंटर करते हैं, एंड देन दे गिव यू द एरिया टू ग्रो इन इट एंड एक्सेल इन इट. तो आई थिंक सो दैट्स प्रीटी मच इट. इसी वजह से हम इस तरीके से बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं. कॉन्टोर कहाँ था, आज कहाँ है. हमारे कुछ सीज़न 1 के जो कैंडिडेट्स थे पॉडकास्ट के, उन्होंने ये तक कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम उस वक्त के हैं जब बिलाल हमें इंटरव्यू किया करते थे. right. आज चूंकि कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब लेयर्स में है. अब बिलाल शाज़ो नादिर किसी ऐसे रिसोर्स, या तो किसी ने बहुत बड़ी फनकारी की है तब करेंगे, ठीक है जी, या तो किसी को गाइड करने के लिए कभी मिल लिए. सो दैट इज़ वन थिंग. ही इज़ इनटू मेनी थिंग्स. हमारी जितने लीडरशिप है, दे ट्राई देयर बेस्ट टू असिस्ट, टू गाइड एंड मेंटर resources whenever they can. Everybody has a very packed schedule. But yes, मैं फिर से आपकी सवाल की तरफ आऊँ कि मैंने मार्केटिंग का एरिया, I think so that was something hidden in me. I kept on trying it, और sky is the limit. I will keep on giving ideas, sharing things, और जब जहाँ मौका मिला वहाँ छक्का लगाने की कोशिश करेंगे. छक्का लगाने की कोशिश करेंगे तो लिटरल सेंस में भी छक्के की बात करते हैं. कराची एंड 1 2 3 4 5 6, मतलब जितनी गिनती इंसान करता जाए, जितने लड़के एक स्ट्रीट में होंगे उसमें से ज़्यादातर बोलेंगे हाँ जी क्रिकेट खेलनी आती है, क्रिकेट का शौक़ है. तो चलें, छक्का ना सही बट किसी भी स्पोर्ट्स की तरफ रुझान है आपका? मैं चूँकि जैसे मैंने पहले भी कहा था, सिबलिंग्स को फॉलो करते थे, तो 12वां खिलाड़ी हमेशा जो बस्ते उठाता है वो था मैं. बड़े भाई हार्ड बॉल खेलते थे, आई यूज्ड टू प्ले. लेकिन वक्त ने फिर इतना ज़रा टाइट स्केड्यूल रख दिया. जब मैं कॉन्टोर आया तो मेरी सोच ये ज़रूर थी कि आई विल गेट एम्पल टाइम टू प्ले. देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ हियर. टेबल टेनिस थी, सोचा था कि टेबल टेनिस ज़रूर खेलेंगे, लेकिन जब आए तो जिस वक्त शुरू करता था उस टाइम वक्त लोग नहीं होते थे. आई यूज्ड टू स्टार्ट वेरी अर्ली, तो वो नहीं हुआ. जब मेरा ब्रेक होता था तब लोग अपना दिन स्टार्ट कर रहे होते थे, वो भी नहीं हो पाया. एंड वन गुड डे देयर वाज अ हार्ड बॉल मैच. इरादा बना के हार्ड बॉल खेलते हैं वापस. कोई करीबन 10 साल के गैप के साथ उस दिन खेला, और शायद वापसी में मैं कोई आधे घंटे गाड़ी साइड पे खड़ी करके वापस घर पहुंचा. एंड आई देन सेड कि नहीं जी, अब हम
नहीं कर सकते, दैट्स नॉट एनी मोर माई कप ऑफ टी. इट्स बेटर के थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार करें स्पोर्ट्स से. अभी देखने की हद तक यस, थोड़ा सा सुन लिया, पता ज़रूर है. फिर मेनी अदर एरियाज, एक्सपोर्ट्स वगैरह का शौक, वो चीज़ें था. देन हैव बीन लाइक वेरी fascinated by how fencing is done. Fencing हो गई, there's जो आपके पास darts का process है, ठीक है. many sports जो शायद बहुत ज़्यादा आपकी ना movement नहीं चाहते, मेरी ख्वाहिश उन पे ज़्यादा है. उन पे ज़्यादा. अच्छा, because mashallah you have a son also. तो उसके साथ कोई गेम्स लाइक हम जब बड़े हो रहे थे तो अटारी वगैरह होती थी, लेकिन अब तो एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन एंड सो मेनी मोर. सो उसका रुझान है और उसके साथ क्या आप खेलते हैं? Yes, I have been very fortunate, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ताला ने जब औलाद नवाजी तो एक कुछ हिडन एरियाज ज़रूर थे. I was always fond of blocks, लेगोस. लेगोस का थोड़ा बहुत आइडिया था. करीबन बेटा जब 2.5 साल का था तो आई गेव हिम समथिंग एंड ही वाज एबल टू लाइक, क्योंकि कलर्स की अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉग्निटिव थिंग्स जो उससे आप लर्न करते हैं. तो ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दैम. तो 2.5 साल की उम्र से आज माशाल्लाह से कोई 5.5 साल हो चुके हैं. ही प्लेज लेगोज, आई प्ले विद हिम. हम लोगों ने स्टार्ट किया था करीब शायद 40 पीस के लेगो से. आज हम करीबन ही हैज़ क्रॉस्ड 650-680 के पीसेस को हम बाकायदा ऑब्जेक्ट्स मिलके बना लेते हैं. कभी कभार अगर वो परेशान हो जाता है तो मेरी असिस्टेंस चाहिए होती है तो आई प्ले विद हिम. वरना सिर्फ उन्हें देखना, उन मुश्किल मैप्स को कंप्लीट करता हुआ, और दैट्स लाइक अ अपने ही एक एरिया में वो, दैट्स वेरी जॉयफुल जस्ट टू सी हिम डू दैट. अक्सर बड़े जो हैं, जो पजल्स फैले होते हैं टेबल पे, पीपल कांट इवन अंडरस्टैंड वेयर टू स्टार्ट, बट व्हेन अ किड पिक्स अप फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड्स इट, दैट फील या दैट लास्ट पीस, कंप्लीटेड पीस, इट्स अ ट्रॉफी इन इट्स ओन सेल्फ कि मैं कुछ कंप्लीशन. हमारे पास शायद आज जो youth है, youth has the major part missing is the completion को हासिल करना आपकी ओवरऑल जो जर्नी है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करता है. एंड आई वोंट लाइक से के यूनिवर्सिटीज़ या हमारा करिकुलम या स्कूल्स नहीं दे पाते. आई थिंक सो दे आर प्लेइंग देयर पार्ट, बट कुछ हद तक हमारी यूथ शायद लेड बैक हो गई है वक्त के गुजरते गुजरते. Post-COVID, things added more. But yes, my advice for any young person would be that they should be on their toes, be ready to take up challenge, and then yes, go for a completion. Completion मिलेगी तो जो वो कहता है जो चस आपको तब आएगी ना, वो नहीं, completion की चस ही अलग होती है. अच्छा, इस वर्ड के साथ और इस टोन के साथ तो अब डेफिनेटली यूथ जो है वो सुनेगी और आपकी बात समझेगी, रिलेट कर पाएगी. वेरी वेल पुट, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. फॉलो थ्रू का जो कॉन्सेप्ट है, एक तो होता है ना फॉलो अप करना, एक होता है फॉलो थ्रू करना. और ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, किसी भी ज़ुमरे में आप चीज़ों को एक कंसिस्टेंसी, तसलसल के साथ जब करते हैं और उसका जो रिज़ल्ट मिलता है उसकी बात ही और है. आपने लेगोस की बात की, and you shared a very personal moment between you and your son, and how you bonded over it. Also आपकी motor skills develop होती हैं, cognitive तो आपने कहा learning होती ही है, and very happy to hear that even though उसको और चीज़ों का like other kids रुझान होगा, but if he is using something जिसमें उसका hands on, minds on learning है, तो that is a great example that you are setting. Fantastic. तो सुना है कि आप claim करते हैं कि आप अपनी बेगम से ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, क्या is this true? नहीं, वो तो नहीं. घर वापस भी जाना है. हाँ, ये ज़रूर है कि खाना पकाते रहे हैं. एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लाइक द इटालियन क्विजीन, पास्tas, चीज़ेस, मेडिटेरेनियन. अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा फ्रूट नहीं है जो हाँ, फ्रूट के लिए ये ज़रूर कहूँगा कटा हुआ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. क्या बात होती है, ठीक है जी. लेकिन हाँ, काट के खाना अल्हम्दुलिल्लाह. Any plant and like greens, all greens are good. Fruit is good. Blanched हो या आपके पास sauteed हो, I'm all good with that. You prefer healthy style of cooking and eating.
वंडरफुल. सो बट यू डिड वेरी स्मूथली अवॉइड द क्वेश्चन. अब बताएं आप क्या बना सकते हैं जो कि अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि आपसे जो पहले बात हुई थी आपने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला था मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ. मेरी वालदा की एक फैमिली रेसिपी है, उसको हम वैसे तो बुरहानी कहते हैं. इट्स अ ब्रिंजल एग प्लांट बेस्ड. अच्छा. वो एक ख़ास तरीके से बनाई जाती है. सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग दैट. आई हैव बिन मेकिंग दैट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. काफ़ी दिन हो गए वैसे मैंने नहीं बनाई है. आई थिंक सो आई हैव टू ब्रिंग इट बैक टू द टेबल अगेन. लेकिन येस, दैट इज़ वन वेरी गुड थिंग जो कि बना पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. वंडरफुल. सुहेब, अपनी जर्नी, सुहेब आपकी कहानी एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो रिलेटेबल बहुत है. एक ऐसी कहानी है जो कि सुन के बहुत सारे लोग उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पिकअप करेंगे. तो आपकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाउंड लर्निंग ज़िंदगी में जो एज अ प्रोफेशनल यू फील यू वुड लाइक टू इम्पार्ट एज एडवाइस टू द न्यूअर जनरेशन ताकि वो भी एक बेहतरीन करियर को बना सकें. एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा वाज़े तौर पे से रही वाज कि थोड़ा सा परसिस्टेंस और परसिवेरेंस, ये दोनों अगर एक जगह आ जाएं तो यू कैन गैदर दैट मास विच इज़ नीडेड. जी. आज के यूथ के लिए अगर मैं कहूँ तो ये एक बड़ी ख़ास चीज़ होगी व्हेन पीपल से कि आई थिंक सो आई कैन स्पेंड ओनली एन ईयर और टू विद अ कंपनी. And still at that point they would expect growth and opportunities coming their way. It is somehow very non-realistic. अगर हम ये ज़रूर कहें, there's a very a saying कि you gain mass when staying at one place like a big large rock. वो वहाँ पड़ा हुआ है तभी वो बड़ा हो रहा है. Time is required. Then what kind of hardships you see? What opportunities would only come your way if you're willing to take the pain? दूसरी चीज़ और बड़ी ख़ास सबके लिए कहेंगे कि opportunities are not given. Opportunities are made. आप खुद से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं. ठीक है, वो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स कि वो कहते हैं ना कि आपके पास इफ यू गेट लेमन्स मेक लेमनेड आउट ऑफ दैट. तो थिंग्स आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट और दे आर ड्रिवन बाय योर ओन थॉट्स. आप किस तरह से किसी चीज को लेके चलना चाहते हैं. लेकिन हाँ, थोड़ा सा दिल बड़ा करके और दिमाग और सब्र का दामन ना छोड़े देन यू गेट टू प्लेसेस. Absolutely wonderful. You and I can probably sit down another 2 hours and talk. There's so much to talk about. लेकिन it's time to wrap up this episode. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुहेब. Thank you very much. The pleasure was mine. And yeah, hope so. We sit again together. And talk very, very soon. Inshallah. Ladies and gentlemen, सुहेब की कहानी I'm sure बहुत सारे लोगों के लिए बहुत relatable होगी. Life does give you lemons and you have to learn how to make lemonade and maybe sometimes lemon margarita out of it also. आपके पास opportunities कम होती हैं, opportunities ज़्यादा create करना सीख लीजिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए. With this message and this note, we'd like to wrap up episode 1 of season 2. Don't forget to tune in every week for another fantastic episode of Contourcast, Podcast for Life. Till next time, this is me, Salmeen Ansari, saying thank you and Allah Hafiz. Make your story here as I have made mine. Add Contour Software. Software for life.